Good afternoon, everyone. How are you all? Good afternoon, sir. I'm fine, sir. What about you? Fine, sir. And what about you? Yeah. Today in our last class, we started the comprehension junction of the chapter number 7. Already we had chapter explanation, paragraph explanation already we have done. Thereafter we were answering the questions. So let us open that section once again. And today we would be solving, we would be trying to give answer for the remaining questions. सर आपकी आवाज कट रही है. Okay, let me check my connection. Beta, at my end there is a proper network. सर अब आने लगे. Other students, please confirm that whether I am audible to you all properly or not. Aviral, Mehak. Yes, sir. Yes, sir. Okay, that means if other students are getting, that means I'm having the proper network. Beta, in our last class, already we have read the habit of a good citizen as well as a good digital citizen. We compare and knew that how a good citizen and good digital citizens do during their shopping or their studying, how they are utilizing themselves and how they stay, how they live in the environment, and how they behave with others in the surrounding. Thereafter, also we answered few of the questions. Can anybody please confirm that till how many questions already we have discussed? From question number A, already we have discussed both the question. Yes, sir. Yes, question number B till question number 1, 2, 3. Is question number 3 is remaining or already we have completed? Sir, question number 1. Okay, that means question number 1 from B section. Yes, sir. Okay, that means there are many questions that are remaining. Okay, no issue. No issue. I'll try to cover all those things. But the question number 1 is, what do you think is the main difference between being a good citizen and being a good digital citizen? What do you think? आप क्या सोचते हैं कि जो मेन डिफरेंस है किसके बीच में, एक गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे डिजिटल नागरिक के बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? बताया गया था आप सभी को, समझाया गया था शायद इस क्वेश्चन के आंसर. Yes, sir. Sir, a good citizen aware of his rights, duties, and law of his or her country. On the other hand, a good digital citizen aware of his rights and the duties of the duties and laws of the digital world. चलिए ठीक है, मैं को फिर से इसको कोशिश करता हूँ, फिर से लिखवा दे रहा हूँ. You all can go through that. Sir, of the digital tools. I would be writing here. It will be help you. It will be helping you all. Though already we have discussed all the topics. अब क्वेश्चन के आंसर हैं, आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, बट फिर भी मैं एक बार लिख दूंगा तो इट विल बी इजी फॉर यू ऑल कि आप अपने क्वेश्चंस को क्रॉस चेक कर सकें. A good अब क्या बोला था बेटा, एक बार फिर से बताइए. A good citizen is aware of his rights, duties and laws of his country, his या her country. Okay, a good citizen is aware of his rights, duties and laws of his or her country. Whereas, लेकिन क्या होता है? On the other hand, a good digital citizen. अब good digital citizens के बारे में लिखना है. On the other hand, a good digital citizen क्या करता है? Is aware. ये किस चीजों के लिए अवेयर रहता है?
is aware of his So his rights. right, इनकी भी कुछ ड्यूटीज हैं, ड्यूटीज एंड लॉज। ये कौन सा लॉज ऑफ द वर्ल्ड नहीं, जो लॉज ऑफ हिज कंट्री था वहां पे, यहाँ पे लॉज ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। Yes, sir. बस यही अंतर है, बाकी कुछ नहीं, Yes. ऑलमोस्ट सेम है, लगभग दोनों एक जैसे हैं। हर दोनों जगह पे एक कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज भी दिखती है। हर जगह फ्रॉड भी हो सकता है। जो गुड डिजिटल सिटीजन होगा और जो गुड सिटीजन होगा वो फ्रॉड से बचने की कोशिश करता है, फ्रॉड में ना फंसे, इस तरह से वो कार्य करता है। इन द सेम वे आपका जो गुड डिजिटल सिटीजन होता है, दे ऑल्सो वर्क, दे ऑल्सो केयरफुल फ्रॉम द चीटर्स, जो चीट करते हैं डिजिटली साइबर वर्ल्ड्स में। So in this way you all can write the answer for the first question from B section. Now let us move ahead on the next question. Second question is, what does stealing refers to in the cyber space? What does stealing refer? ये stealing ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। What does stealing refer to in the cyber space? रेफर मतलब क्या होता है? What does stealing refer? ये stealing से क्या रेफर होता है, क्या मतलब निकलता है in the cyber space? किसी को समझ में आ रहा है? The stealing, yes, sir. The stealing refer to in the cyberspace that we not have to steal or damage others' digital work, identity or property. आप तो ये बता रही हो कि हमें नहीं करना चाहिए, बस स्टीलिंग का मतलब क्या निकलता है? स्टीलिंग मतलब चुराना, ये तो होता है, लेकिन क्या चुराना? दूसरों के फाइल के चुराना, दूसरे के डॉक्यूमेंट को चुराना, इसका तात्पर्य ये है। चलिए ठीक है, आपने कोशिश किया, बहुत अच्छा। एनीबडी एल्स हु आल्सो वांट टू स्पीक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अंश पांडे, अरुण गुप्ता, सुमन। सर क्वेश्चन नंबर कितना है? अभी आपको यही नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 2, सर अभी तक हमारा सेशन कट गया था। what does stealing refer to in the cyberspace? What does stealing refer to in the cyberspace? The question is this. सिंगल वर्ड्स में आप इसको बोल सकते हैं साइबर थेफ्ट, है नहीं? बहुत ही आसान शब्दों में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, साइबर थेफ्ट। अब साइबर थेफ्ट मीन्स क्या होगा अगर सिंगल वर्ड से में अगर हम सोचें, क्या होगा? साइबर अपराध, साइबर क्राइम बोल सकते हैं, साइबर थेफ्ट बोल सकते हैं। थेफ्ट ही होगा, चोरी होगा एक तरीके से। स्टील मतलब किसी के डेटा को चुराना, किसी के फाइल को चुराना। तो व्हाट इज स्टीलिंग रेफर इन द साइबर स्पेस? इन द, अभी महक ने जैसा आंसर बताया बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है। स्टीलिंग रेफर्स टू इन द साइबर स्पेस, हाउ यू विल राइट, हाउ यू ऑल नीड टू राइट स्टीलिंग। स्टीलिंग मीन्स साइबर थेफ्ट इन द साइबर स्पेस। इट इज अ मतलब द थेफ्ट दैट अकर्स across the cyber on the internet, across the internet is called the stealing. या आप डायरेक्टली लिखते हैं स्टीलिंग रेफर्स टू इन द साइबर स्पेस, साइबर थेफ्ट। सीधा एक सिंगल आंसर में, वन वर्ड में आप आंसर लिख सकते हैं। आसान यही होगा, साइबर थेफ्ट लिख दें। साइबर थेफ्ट रेफर स्टीलिंग in the cyber theft refers stealing in the cyberspace. Okay, इजी है, लिख ले जाएंगे आप सभी लोग ऐसे ही। Yes, sir. Okay, now moving ahead on the next question, how can you limit the health risk of technology? How can you limit? आप लिमिट यानी कि एक तरीके से बंद तो नहीं कर सकते, कई सारी चीजें हमारे हाथों में नहीं होता है, हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसको लिमिटेड रख सकते हैं। तो हाउ कैन वन लिमिट,
कैसे लोग सीमित रख सकते हैं, क्या हेल्थ रिस्क ऑफ द टेक्नोलॉजी, हेल्थ रिस्क, तो टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं हमारा जो स्वास्थ्य है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी से हमारे हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है और वो हमारे हाथ में नहीं है कि उसको खत्म कर दें, लेकिन हाँ वी कैन एटलीस्ट वी कैन लिमिट, वी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ। सो हाउ कैन वी लिमिट द हेल्थ रिस्क, यही बात पूछा गया है, हाउ कैन वन लिमिट द हेल्थ रिस्क ऑफ टेक्नोलॉजी। एक बार कोशिश करके आप लोग अपने तरफ से आइडियाज दें, अपने तरफ से आंसर दें, आपको पढ़ाया भी गया है। आप लोग को अगर अपनी मर्जी से बिना पढ़े इसको आंसर देना होता तो भी आप लोग बता सकते हैं। आप लोग ये मानते हैं कि नहीं फोन लैपटॉप कंप्यूटर से नुकसान होता है, नुकसान होता है कि नहीं? सर होता है। सर होता है। अविरल चतुर्वेदी, नुकसान होता है? यस सर। मन आपको भी नुकसान करता है कि नहीं, नुकसान करता है कि नहीं? माइक ऑन करके, अभी आपको सीखना है, तुरंत माइक ऑन करिए फिर बोलिए फिर माइक बंद करिए। होता है नुकसान करता है ना? तो आखिर नुकसान करता है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी शुड डू? ये तो आपको कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट में भी पढ़ाया गया होगा, लोग आपके घर वाले भी, आप लोग भी अपने से छोटे लोगों को ज्ञान देते होंगे, कितनी देर टीवी मत देखो आंखें खराब हो जाएगी। ज्ञान तो फ्री में दिया जाता है, आराम से लोग देते हैं, जब अपनी बारी आती है तब बात अलग होती है। जितनी देर तक कान मतलब मत बात करिए, नहीं तो कान भी खराब हो जाएगा। ये ईयरफोन लगा के अविरल बैठे हैं, अभी क्लास चल रहा है, 20 मिनट है, थोड़ा बहुत ही कम वैल्यूम में ईयरफोन, मतलब वैल्यूम इसकी काफी ज्यादा एक ना रखे, नहीं तो कान खराब हो सकता है। लॉट्स ऑफ थ्रेट आर देयर, lots of issues are there, lots of many health risks are there with technology। इसको हम लिमिट कैसे कर सकते हैं, how we can limit it? सर हमें जितना हो सके कम मोबाइल देखना चाहिए। yes, यही चीजें आपको इंग्लिश में बोल देना है, आप कोई कोशिश करें। सर वी नीड टू यूज लेस टाइम ऑफ मोबाइल। okay, anybody else who want to try? You can speak like one can limit the health risk, one का मतलब one limit the health risk ना, ये can one limit the health risk of technology, इसी को अगर आप आंसर जब लिखना शुरू करें, अबे वन की जगह पे किसी का नाम होता है तो उसका नाम लिख देते हैं। One can limit the health risk of technology by क्या करके, by doing या by not doing? By not doing के बजाय by not spending too many hours on the computer or phone, by not spending यानी फोन या कंप्यूटर्स पे ज्यादा समय ना बिता करके अपने जो हेल्थ रिस्क, टेक्नोलॉजी से होने वाले हेल्थ रिस्क को वो लिमिट कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वन के बजाय अगर हम वी लिख दें तो क्या लिखेंगे? अंश पांडे, लिखना सीखिए, सेंटेंस फ्रेम करना सीखिए, नहीं तो अभी तो नहीं कर पाते, कर भी नहीं पाएंगे। 9th-10th में कोई नहीं बताने वाला रहेगा, 7th-8th में कोई नहीं बताने वाला रहेगा, अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, बच्चे कम है, प्रॉपर्ली आपको सेंटेंस फॉर्मेशन सीखना चाहिए। अभी भी नहीं बना पाते हैं, बाद में भी नहीं बना पाएंगे, ऐसे ही रह जाएंगे, फिर हिंदी मीडियम पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। how you all can write the answer? One can limit the health risk of technology, one के बजाय मान लीजिए अपने आप को आप लेके देखिए, we can limit the health risk of technology, हम हेल्थ रिस्क जो टेक्नोलॉजी से होने वाले हेल्थ रिस्क है उसको लिमिट कर सकते हैं। we can limit the health risk of technology by not spending too much hour on the phone or laptop। बहुत इजी क्वेश्चन है। और भी कई सारे तरीके हैं, by keeping our phone away at nights to get a sound sleep and by sitting in the right posture in the front of computer, कंप्यूटर्स के सामने एक राइट पोस्चर में, ऐसा नहीं कि आप चाहे जैसे परेशान होकर के, मतलब प्रॉपर्ली कंफर्ट फील करना चाहिए जब भी आप क्लास करें बैठते समय। तो इन दिस वे यू कैन
not only you can, but even we all can limit the risk due to the technology. ध्यान रहेगा सभी को? Yes, sir. चलिए मैं इसका आंसर एक बार लिख भी देता हूँ. कुछ बच्चे Yes, हैं sir. जो बातें करते रहते हैं, कम से कम वो भी लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे. सर मैंने हाँ हाँ बोलिए, क्या क्या बोल रहे हैं? One can limit health risk by technology by not spending too many hours on the computer. Computer or phones. बट एक आप एक भी रीजन लिख देंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ आई होप you all can read and you all can memorize and write the answer after the class. Yes, sir. Now moving ahead on the next question. Yes, sir. Fourth question is, what are some of the risks of online shopping? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया. What are some of the risks of online shopping? What are some of risk? ये थोड़े बहुत रिस्क होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में. रिस्क होते हैं कि नहीं? कई बार आप लोगों सर होते हैं. सर होते हैं. होता है, जरा बताइए मुझे. What kind of risk are there? वही पूछा है. What are सर there? कौन कौन से रिस्क होते हैं वही पूछा है. बताइए कौन कौन से रिस्क होते हैं. किताब में मत खोजो बेटा, मैं सर कई वैसे ही बता दो. रियल लाइफ में आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो अब आजकल नॉर्मल हो गया है, जनरल हो गया है. मिनी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या सर मनी ज्यादा ले लेंगे. पैसा ज्यादा ले लेंगे. दे कैन टेक मोर. सर सामान भी खराब देते हैं. ऑल्सो दे गिव, ऑल्सो दे कैन प्रोवाइड बैड. वर्स्ट सर वो इस सामान को सर एक्सचेंज worst. करके देते हैं. वर्स्ट है, खराब दे देंगे. वर्स्ट मतलब खराब, बैड. ओके. यस, एनीबडी एल्स? यस महक. There are some risks of online shopping, such as we have to take decisions before purchasing and protect their payment information. हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? आपने दो चीजें बताई, दोनों चीजों का अलग मतलब. इसका हिंदी में जरा मुझे बताइए. पहला यह है कि वी शुड टेक डिसीजन. हमें ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो डिसीजन है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट लेना होगा कि वेदर वी हैव टू बाय और नॉट. कोई भी चीजें महंगी है या सस्ती है, कोई भी चीजें अच्छी है या खराब है, ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा. कैसे इंश्योर करेंगे? हम एक बार देखेंगे जहां से हम जिस वेबसाइट से खरीद रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं, क्या वो जेन्युइन है, क्या वो ऑफिशियल है, क्या वो वेल नोन है. फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, और भी बहुत सारे हैं. कई बार लिंक आ जाता है कि 399 का रिचार्ज करिए फ्री में. सर स्पैम डील भी है. कई लोग रिचार्ज करने के चक्कर में पैसा गुमा देते हैं. क्या वो ऑफिशियल रिसोर्सेज से वो लिंक आता है? क्या वो सही है? यू ऑल हैव टू मेक श्योर. जो डिसीजन लेने के पहले आपको मेक श्योर होना सर पड़ेगा. मनी कट जाता है. पैसा कट जाएगा, रिचार्ज नहीं होगा. और भी ज्यादा भी पैसा कट सकता है. कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई और सामान ऑर्डर किया, कुछ और सामान आ गया. इट हैपेंस विथ मी ऑल्सो. इट हैपेंड, मेरे साथ भी हुआ है. कई बार ऐसा भी होता है कि चीजें आती हैं, काम ही नहीं करता. आपने पता लगा कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाया है, घर पे आया तो वो काम ही नहीं कर रहा है. इट इज नॉट वर्किंग. तो दीज आर द रिस्क. और ड्यूरिंग द पेमेंट इंफॉर्मेशन, जब पेमेंट इंफॉर्मेशन आप पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट इंफॉर्मेशन किसी ने रिवील कर लिया तो उससे बाद में भी आपका अकाउंट ही हैक कर लिया, सारे पैसे निकाल लिए. तो देयर आर मेनी रिस्क ड्यूरिंग ऑनलाइन शॉपिंग. तो आप सभी को वही सारी चीजें लिखनी है. एक तरीके से बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ साइबर थेफ्ट. कहीं ना कहीं साइबर थेफ्ट, जो आपका साइबर अपराध कहते हैं या साइबर थेफ्ट, साइबर स्टीलिंग का शिकार होने से बचना चाहिए. आपको क्या लिखना है?
व्हाट आर द सम ऑफ द रिस्क ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। सबसे पहला है, एक शब्दों में अगर जितनी बातें हम लोगों ने किया, एक शब्द में, एक लाइन में अगर हम कहना चाहें तो क्या कहेंगे हम? जो साइबर थेफ्ट है उसके शिकार ना बन जाए, वो मेरे साथ कहीं ना हो जाए, हमें उससे बचना चाहिए। क्या कहना है? सर व्हाट इज साइबर थेफ्ट? पार्डन बेटा, अरुण गुप्ता, व्हाट यू आर आस्किंग? तो साइबर थेफ्ट क्या होता है? साइबर थेफ्ट अभी मैंने सेकंड आंसर में लिखाया था। स्टीलिंग रेफर्स टू द साइबर थेफ्ट। स्टीलिंग मतलब चोरी करना, थेफ्ट मतलब चोर। जो साइबर थेफ्ट होते हैं, जो इंटरनेट के थ्रू चोरी करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, यही लोग साइबर थेफ्ट कहलाते हैं। तो इन जैसे जो साइबर थेफ्ट में आपके डेटा चुरा लें, आपकी पेमेंट इंफॉर्मेशन चुरा लें, या आपको पैसे ज्यादा ले लें, खराब सामान दे दें, ऐसे लोग जब आपके साथ कोई गुनाह करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, तो साइबर थेफ्ट ही, साइबर क्राइम ही कहलाएगा। तो बिकमिंग अ विक्टिम, वी शुड अवेयर दैट, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वी शुड नॉट अ विक्टिम, हम एक विक्टिम ना बन जाए। बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ अ साइबर थेफ्ट, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाट आर द रिस्क? सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि साइबर थेफ्ट का शिकार हो जाना। बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ साइबर थेफ्ट, सबसे पहले ये बात हो गई। दूसरी चीजें क्या हो सकती है? फेक ई कॉमर्स साइट। बहुत सारे, मैंने कहा ना कि बहुत सारी फर्जी ई कॉमर्स साइट है। ई कॉमर्स साइट क्या होता है? जहां पे ऑनलाइन शॉपिंग होती है, ऑनलाइन बाजार। जैसे कि फ्लिपकार्ट आपका फेक नहीं है, लेकिन कई बार फ्लिपकार्ट की स्पेलिंग में चेंज करके कोई दूसरा फ्लिपकार्ट भेज दिया जाता है। वहां पे किसी ने ऑर्डर किया, पता लगा पेमेंट कहीं और भेज दिया, सामान आया ही नहीं। तो कई बार जो पॉपुलर वेबसाइट होती है उसी का कॉपी भी कर लिया जाता है, फर्जी वेबसाइट बना दिया जाता है। तो ये सब इंश्योर करना पड़ेगा। कई बार ऑनलाइन एसबीआई, कई लोग फोन करते हैं कि हम आपके बैंक आईसीआईसीआई बैंक से आपने सफारी जीत लिया है, आप 50,000 रुपये जमा करिए तो आपको सफारी भेजेंगे। यस सर। मेरे पास भी ऑफर आया था, हमने कहा भैया हम बाइक से चलते हैं, हम सुखी हैं, खुश हैं, हवा लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसी की जरूरत नहीं है मुझे, ठंडी ठंडी हवा लगती है, और ठंडक में तो बिल्कुल हमें कश्मीर की यादें आने लगती हैं। मॉर्निंग में जब सुबह 8 बजे क्लास लेने स्कूल जाना पड़ता है, तो ये सब कहाँ, सफारी में थोड़ा आनंद मिलेगा। तो उन लोगों को से ऐसे बचना पड़ेगा। तो जो फर्जी ई कॉमर्स साइट है, फेक ई कॉमर्स साइट्स हैं, इनके शिकार ना बन जाए, इनसे भी बचना पड़ेगा। शेयरिंग योर बैंक डिटेल, आपके जो बैंक डिटेल हैं, जो सफारी वाले भैया लोगों के साथ आपको बैंक डिटेल नहीं शेयर करना है, ओटीपी नहीं बताना है, पिन कार्ड नहीं बताना है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो साइबर रिस्क है, कह सकते हैं जो रिस्क है टेक्नोलॉजी का, या ड्यूरिंग ऑनलाइन शॉपिंग क्या क्या रिस्क है। अभी 3 रिस्क की बात किया गया कि कहीं हम जो साइबर थेफ्ट के विक्टिम न बन जाए, कहीं हम जो फेक ई कॉमर्स के जाल में न फंस जाएं, कहीं हम अपना बैंक डिटेल, कहीं पेमेंट करते समय बैंक डिटेल की इंफॉर्मेशन न किसी के साथ शेयर कर बैठे। दीज आर द सम काइंड्स ऑफ रिस्क। ये सारे रिस्क है, यू ऑल कैन राइट ऑल दोज थिंग्स। एक बार मैं लिख भी देता हूं फॉर ऑल योर कन्वीनियंस। और इन सब के आंसर तो आप लोग को स्वयं लिखने चाहिए, बिकॉज इसका आंसर तो अलग अलग हो सकता है, किसके मन में क्या आ रहा है, सभी के आंसर सही हो सकते हैं। रिस्क ही पूछा है तो मैं रिस्क ही लिखूंगा, बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ साइबर थेफ्ट, फेक ई कॉमर्स साइट्स। और क्या हो सकता है? ऑनलाइन पेमेंट डिटेल हो गया मान लीजिए। शेयरिंग योर, और सर कभी बैंक वाले फोन करते हैं तो कहते हैं आपका बैंक बंद होने वाला है। बैंक वाले कभी नहीं फोन करते, वो फर्जी बैंक वाले रहते हैं, समझ में सर आया? एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया कई था बार बैंक के पर लोग भी केबीसी। फ्रॉड करने के चक्कर में बैंक के लोग ही थोड़ा बहुत आपके इन्फॉर्मेशन बताएंगे, आपको लगेगा अरे ये तो सच में बैंक से ही फोन है। आपको फिलहाल कोई भी जो कॉन्फिडेंशियल ओटीपी तो कभी भी नहीं बताना चाहिए, कभी भी नहीं बताना चाहिए। कहीं भले बोल रहे हैं कि बेटा हम मैनेजर साहब बोल रहे हैं, कहते हैं हम एसबीआई ही बोल रहे हैं,
दिल्ली से बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का नाम लेकर के अगर कोई बोल दे कि हम बेटा हमें ओटीपी बता दो, कह दो नहीं, ये कैसे हो सकता है, ओटीपी तो और नहीं तो अगर कोई ज्यादा, जब आप लोग के पास खाली समय रहा करे तो बता दिया करो इधर उधर की ओटीपी, कह दो मेरे पास तो यही आया है, चेक करा लो आप, वो चेक कराते रहे। उन लोग से उर्दू में बातें किया करो, इंग्लिश में बातें किया करो, अलग अलग लैंग्वेज में बात करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारने लगो। इंग्लिश पढ़ रहे हो आप लोग, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करिए। सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग, व्हाट यू वांट टू टेल, कैन यू स्पीक वंस अगेन, व्हाट डू यू वांट टू से। तो बेचारे बोलेंगे कुछ, थोड़ा बहुत आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, इंग्लिश में ही बोलना, भले गलत सही बोलना, उनको भी नहीं समझ में आएगा, वो पागल हो जाएंगे, क्योंकि भैया ओटीपी मांगा था, इस ओटीपी के चक्कर में। चलिए ठीक है, लेट अस कम ऑन द आंसर। बहुत बातें हो गई आज, आप लोग का पढ़ाई कम, बातें ज्यादा हो रही है। बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ साइबर थेफ्ट, और क्या हो गया, फेक ई कॉमर्स साइट शेयरिंग योर बैंक डिटेल्स टू, sharing your bank details to fake sites, fake sites हो गया, complete एक्सेट्रा। अब चलो बहुत सारे नहीं लिखूंगा, are some okay. Yes, sir. Becoming a victim Yes, of sir. cyber theft, fake e-commerce sites, sharing your bank detail to fake sites to complete the shopping, many others, इसीलिए मैंने एक्सेट्रा भी लिख दिया, आदि आर सम ऑफ द रिस्क ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। रिस्क की स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लीजिएगा आप सभी लोग, ये रिस्क की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, रिस्क होना चाहिए RISKS, ठीक है। That is the answer for the fourth question. Now let us move ahead on the question number 5. What are the basic human right in the digital world? Basic human right क्या है डिजिटल वर्ल्ड का, जल्दी से बताइए। Only 5 minutes is remaining. अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं, बातों में ही सारा समय खत्म हो गया। बहुत आसान है, मैं जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ या आप लोग बताएंगे। आपका सब मिला के डिजिटल वर्ल्ड की बात आती है तो अधिकार की बात आती है, एक्सप्रेशन की बातें आती है। आप कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल दिया, मोदी जी के खिलाफ बोल दिया, किसी भी पार्टी के खिलाफ बोल दिया, लेकिन आप कुछ बोले तो सोच समझ के बोले, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की प्राइवेसी को किसी की प्राइवेसी को आप ना नुकसान पहुंचा रहे हो, किसी के डेटा को आप ना नुकसान पहुंचा रहे हो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी का है तो उसको लेकर के आप कहीं ना दिक्कत कर रहे हो। तो दीज आर द राइट्स एंड दीज आर द, सब मिला के डिजिटल, क्या पूछा गया है, सब डिजिटल वर्ल्ड में जो बेसिक ह्यूमन राइट क्या है, आप अपने डेटा को, अपने प्राइवेसी को आप छिपा के रखें। कोई जरूरी नहीं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन व्हाटएवर यू आर हैविंग, कोई पर्सनल फाइल्स है, फोटोज है, वीडियोज है, कोई जरूरी नहीं कोई हर कोई देख ले। व्हाट्सएप पे आप लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी नहीं देख सकती, कोई भी नहीं देख सकता, वो प्राइवेट, मतलब बिना आपकी परमिशन के कोई भी नहीं देख सकता। इट इज कॉल्ड द प्राइवेसी। वन मोर थिंग, आप कोई भी बातचीत कर ले रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी भी तरह की, दैट इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप कुछ भी बोलने जा रहे हैं, किसी के बारे में भी बोल रहे हैं, किसी भी मुद्दे पे आप को सही कह रहे हैं। जब कोई गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है आप सही कहते हैं, कुछ लोग गलत कहते हैं, सभी को अधिकार दिए गए हैं, सभी को राइट्स दिए गए हैं कि दे कैन यूटिलाइज द राइट। तो these are the basic rights of human in the digital world. So what you all can write the answer, some basic human right, some basic human rights in the digital world
include freedom of speech. फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इट वुड बी मोर बेटर. एक्सप्रेशन, कुछ भी एक्सप्रेस करना हो. डेटा प्रोटेक्शन, डेटा अपना सुरक्षित रखें. एंड प्राइवेसी लिखो, बाकी जो आप लोग को ध्यान आएगा आप वो सब भी लिख लीजिएगा. दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप फिफ्थ क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग लिख ले जाएंगे. ऐसे आसान है, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Now the last question, why is it important to be a good and responsible digital citizen? ये जरूरी क्यों है कि आप एक अच्छे और रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन हो? नहीं रहेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा. सीधा सीधा हिंदी में अगर कहें, बट आप लोग बताइए, कोशिश करिए इंग्लिश में बोलने की या इंग्लिश में आंसर लिखने की. Sir, because we are not thief. ओके, वी आर नॉट थीफ, हम चोर नहीं है, इस वजह से वी शुड रिस्पॉन्सिबल बी ए डिजिटल सिटीजन. ठीक है, अच्छा है. Also you all can write a good and responsible citizen is able to educate and protect himself. जो good यानी अच्छा और रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन होता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, अपने पेमेंट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकता है. जो कोई पढ़ा लिखा नहीं है आदमी तो वो क्या जानेगा ये फेक साइट है या असली वाला है, ये तो नहीं पता चलेगा ना. Yes, sir. तो बहुत सारी चीजें. यस तो लिखेंगे क्या, गुड एंड रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबल की स्पेलिंग सही है ना? हाँ ठीक है. सिटीजन इज एबल टू एडुकेट. एडुकेट मतलब एडुकेट, ठीक है. एडुकेट एंड प्रोटेक्ट, पढ़ाना. एडुकेट मतलब टीचिंग, पढ़ाना, यानी समझ सकता है. उन में ये काबिलियत होती है कि एडुकेट और प्रोटेक्ट कर सकें, किसी को सिखा सकें, एडुकेट कर सकें. हिमसेल्फ others. A good and responsible citizen is able to educate and protect himself. अपने आप का अपना बचाव कर सके और लोगों को एडुकेट कर सके. तो दैट मीन्स कि आपके टीचर्स जो हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस समय कि चलो ठीक है हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं. दैट मीन्स आई कैन से दैट कि आई एम ए गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, वेयर I'm trying to educate my students and trying to protect myself from being a jobless. Okay. और क्या लिख सकते हैं? A good digital citizen also helps us. किस तरह help करता है? In defining the proper use of technology. Makes well informed and safe decision. कोई भी डिसीजन लेने के लिए अगर कोई गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होगा तो उसके लिए आसान हो जाएगा. दैट विल बी इजी फॉर देम. बेटा अब लास्ट के 2 मिनट बचे. एक क्वेश्चन और है इसलिए ज्यादा समय मैं नहीं आप सबको दे पाऊंगा. इस पे जल्दी से आप लोग बता दीजिए. इफ यू एवर एनकाउंटर एन इम्पोलाइट और एंटी सोशल बिहेवियर ऑनलाइन, अगर कभी आप लोग को ऐसी चीजों का सामना करना पड़े जहाँ पे इम्पोलाइट, जहाँ पे भड़काऊ चीजें हों, एंटी सोशल बिहेवियर, जो कि सोशल बिहेवियर जो एक्सपेक्ट किया जाता है बिना वो सोशल बिहेवियर ना फॉलो कर रहा हो, ऐसे जगह से ऐसे सिचुएशन से आपको अगर कहीं फेस करना पड़े, देन हाउ विल यू डील विथ इट. तो आप इससे कैसे डील करेंगे? आप भी झगड़ा करने लगेंगे, कोई मान लो गाली दे दे आपको, उल्टा सीधा कहने लगे, तो क्या आप भी उसी लैंग्वेज में इससे बातें करेंगे? हाउ विल यू डील इट? उसको ब्लॉक कर देंगे, बस छुट्टी. ब्लॉक, देयर इज अ ऑप्शन इन दैट. तो देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, टेक्नोलॉजीज होते हैं, नहीं ध्यान देंगे उस सब सारी चीजें. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स. अब 1 मिनट बचा है तो मैं इसका जल्दी से आंसर लिखता हूँ, बताता हूँ आप सभी को. इफ आई एवर एनकाउंटर एन impolite or anti-social behavior online, I would first ignore. सबसे पहले हम इग्नोर करेंगे, and not reply or react. हम उसको इग्नोर करेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, ना ही रिएक्ट करेंगे. जितना रिप्लाई करोगे, जितना रिएक्ट करोगे, वो तो यही चाहता ही है
इसीलिए तो इस तरीके से, तो अगर कभी भी आपको जो चीजें ना पसंद हो वो इस तरीके से आपके साथ रियल लाइफ में भी अगर कोई ऐसा दिखे तो उसको अवॉइड करो, इग्नोर मार दो, उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, ना उस पर रिएक्ट करो, ना गुस्सा करो। इफ द एंटी सोशल बिहेवियर स्टिल परसिस्ट, अगर फिर भी अगर कोई ना माने, देन आई वुड कलेक्ट द एविडेंस, तो आप सबूत इकट्ठा करेंगे, उसकी स्क्रीनशॉट रखेंगे, रिकॉर्डिंग रख लेंगे कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे बोला है, इन्होंने मेरे पास ये भेजा है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, आप एविडेंस रखेंगे टू रीच आउट द माई, तब अपने पेरेंट्स के को शो करेंगे, फिर जो आपके पेरेंट्स है वो पुलिस या जो कंसर्न पर्सन है उससे बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस आंसर। मैं जल्दी से लिख देता हूं। इफ आई एवर encounter an impolite anti social behavior, first reply or react। बेटा आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लेना क्योंकि आपका ये कटने वाला है, खत्म होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नई क्लास शुरू करेंगे।